Hello and most welcome, my dear students. And we are discussing about what the molecular basis of inheritance. And in this very video lecture, we are going to discuss about the DNA replication and the proof of DNA replication. So I, Ravikant, welcome you all here in this लेक्चर सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। अप टू नाउ यू आर जस्ट स्टडिंग अबाउट व्हाट इज डीएनए, हाउ डीएनए इज फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए, हाउ जेनेटिक मटेरियल वाज सर्च्ड। तो उसके लिए आप लोगों ने देखा कि हर्से और चेस का एक्सपेरिमेंट है ना, एंड न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट, पैकेजिंग ऑफ डीएनए. So you have studied all these things up to yet, and now we are going to study at next level of this chapter. The chapter is molecular basis of inheritance, and the topic for the day is DNA replication and the proof of DNA replication. That is the experiment performed by some scientists to prove that what is the semi-conservative model of DNA replication, or DNA replicate in which manner. So let's start. Okay. Now, according to the statement of Watson and Crick, what is replication? मतलब उन लोगों ने जब DNA का मॉडल दिया था तो उन लोगों ने कंसीडर किया था कि DNA अपने आप को अपनी एग्जैक्ट कॉपीज तैयार करता है, and so their statement is what? It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism of genetic material. और ये स्टेटमेंट बिल्कुल उन्होंने, जो वॉटसन और क्रिक थे, उन लोगों ने डबल हेलिकल मॉडल को देते समय ही दे दिया था. इट सिंपली सजेस्ट दैट both of them must know about the copying mechanism, and they suggest a very wonderful scheme for the replication of DNA, and nowadays that scheme is known as semi-conservative DNA replication. It does not mean that DNA replication takes place in the very same manner as they described, means semi-conservative only. Actually, DNA replication is a diverse mechanism. Okay, so at least there are 3 pathways for the DNA replication, but for our concern, when we study for the NEET examination, medical examination, board examination, competitive examinations, and when we take NCERT books as a reference, the semi-conservative model for the DNA replication is one of the most demanding topic. Okay, now what are the other possible mechanism for the DNA replication? तो उसको हम कंजर्वेटिव कहते हैं, डिस्पर्सिव कहते हैं. सो कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ DNA replication, and semi-conservative model of DNA replication, in which semi-conservative model of DNA replication, we are going to discuss about this particular model in our lecture session. Okay, the scheme suggested that 2 strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strand on old one, new complementary strand on the old one, which act as template. Okay, after the completion of replication, each DNA molecule have one parental and one newly synthesized strand. This scheme was termed as semi-conservative DNA replication, and one of the most demanding and burning type of model, and that's why we are going to study this particular model here. Okay, तो हमारे एग्जामिनेशंस के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को समझ लें.
उसके पहले हमें डीएनए को समझना था। डीएनए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मान लीजिए जिसने नहीं भी डिस्कस किया, जो नहीं भी समझ पाया था, जो यहाँ पे अभी न्यू होगा, फिर से हम डीएनए को एक लुक देखेंगे। लेकिन उसके पहले कौन सी मशीनरी होती है, कौन से स्टेप होते हैं, उसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है ना। चलिए शुरू करते हैं। द मशीनरी एंड द एंजाइम। मशीनरी एंड द एंजाइम का मतलब कि कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पे यूज होंगे और किस तरह से वो एफिशिएंटली वर्क करेंगे। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही हाईली प्रिसाइज्ड वर्क है, बहुत ध्यान से करने वाला काम है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कुछ वैसा ही है, क्योंकि बहुत फास्ट, रियल में ये बहुत फास्ट वर्क होता है, बहुत तेजी से डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कब होता है? एस फेज में होता है ना। सेल साइकिल के एस फेज में होता है। सेल साइकिल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था जस्ट 2-3 लेक्चर पहले, तो आप उसको देख सकते हैं। In living cells such as Escherichia coli, the process of replication requires a set of catalysts, that is enzymes. These are as follows. Some of the enzymes are here, है ना। कोशिश किया है कि सभी लिखा जाए, फिर भी इसके अलावा भी और बहुत सारे एंजाइम हो सकते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 1, इसको सिंपली हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। DNA dependent DNA polymerase 1, DNA dependent DNA polymerase 3, this is the main enzyme. DNA dependent DNA polymerase 3 is the main enzyme. Okay, then primase, it is what? Primase. Okay, तो primase को DNA primase भी कहा जाता है। प्राइमेज को डीएनए प्राइमेज कहते हैं। मैं इसके बारे में समझाऊंगा आपको। नाम तो डीएनए प्राइमेज है, लेकिन जिस प्राइमर को एक्टिवेट करता है उसके बारे में बताऊंगा। देन टोपोआइसोमरेज है ना। टोपोआइसोमरेज फिर फर्दर कई कैटेगरी के होते हैं, 1, 2 है ना। टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, लाइगेज। तो अब आपको सिंपली बस इतना याद रखना है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे, और वो कौन कौन से एंजाइम हैं। पहला है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 3, देन प्राइमेज, देन टोपोआइसोमरेज, देन हेलिकेज, लाइगेज। तो ये कुछ मेन एंजाइम हैं जो आपको याद रहने चाहिए। These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of large number of nucleotides in a very short time during the S phase. During the S phase, as you know, okay? तो बहुत प्रिसाइज वर्क होना चाहिए, फास्ट भी करना है, एक्यूरेट भी करना है, तेजी से करना है और बिना गलती के करना है। ओके, कितना फास्ट और कितना एक्यूरेट करना है अब आपको इस डेटा से समझ में आ जाएगा। दैट एशेरिशिया कोलाई दैट हैज ओनली 4.6 into 10⁻⁶ बेस पेयर्स, है ना। वैसे भी ये नंबर बहुत बड़ा है। ओके, 4.6 into 10⁻⁶ base pair completes the process of what? Replication within 18 minutes. इतने बड़े से base pair, that large amount of base pair will be replicated in within 18 minutes. Within 18 minutes, that means the average rate of polymerization has to be approximated 2000 base pair per second. Per second. You just imagine when you inhale and exhale 1 second. In this particular second, the polymerization of 2000 base pair will take place. So this much of speed, high speed and accuracy, speed plus accuracy is the demanding feature of what? DNA replication. Am I clear? मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो इतना एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। सो नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट, सिर्फ फास्ट ही नहीं होना है, बट ऑल्सो हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
means any type of mismatch is not useful for us. So it requires a high degree of accuracy. Am I clear? Do you have any problem with this? I don't think so. Now, any mistake during replication would result into the mutation. It result into the mutation. Furthermore, energetically, replication is very expensive process as it involves the ATP, है ना? ATP बहुत खर्च होती है. ATP is utilized for the process and it is very energy consuming process. तो हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी बनती है उसका मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे खर्च होता है. रेस्पिरेशन एंड रेप्लिकेशन बोथ कंज्यूम मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एनर्जी दैट वी हैव. Deoxyribonucleoside triphosphate acting as the substrate as well as they provide energy for the polymerization reaction. Okay, so triphosphates here, deoxyribonucleoside triphosphates provide what? Substrate, that is nitrogenous base plus sugar plus phosphate, and when they break, when the bond between the phosphate is break, it provide energy also. तो मैंने आपको ATP का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और वहां पे आपने देखा था कि जब ATP ब्रेक होती है ADP में कन्वर्ट होती है, अप्रोक्सीमेटली 7 किलो कैलोरी एनर्जी will be released, 7.3 or approximately 7 kilo calorie. So this is how a complex thing you study about, है ना? इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को आप पढ़ रहे हो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली है. अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस हियर and I'm very happy to reply you. Okay. Okay, so deoxyribonucleoside triphosphates acting as substrate as well as they provide energy for the polymerization reaction. The two terminal phosphates in deoxynucleoside triphosphates are high energy phosphates. यानी अगर मान लीजिए ATP है, से दिस इज व्हाट ATP, तो ATP में एक तो एडेनोसिन है और 3 फॉस्फेट हैं, है ना, 1 2 and 3. सो देयर आर 3 फॉस्फेट्स. तो ये जो 2 फॉस्फेट आपस में जुड़े होते हैं ना, इनके बीच का तो बहुत ही हाई एनर्जी बॉन्ड होता है. इसी की बात हो रही है. और आपको पता है कि जब ये टूटते हैं तो 7 किलो कैलोरी एनर्जी फ्री करते हैं. एम आई क्लियर? ओके. सेम एज इन द केस ऑफ ATP. बिल्कुल ATP की बात होगी ही जब ऐसी बात आएगी तो मेरे ख्याल से ये लाइंस आपको क्लियर हो चुकी हैं और ये भी समझ में आ गया है कि कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है और कितना ज़्यादा स्पीड में ये वर्क होता है. मतलब कितनी स्पीड में होता है, कितनी एक्यूरेसी चाहिए, और साथ ही साथ एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी भी है, यानी एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है. इतनी सारी चीज सेकंड्स में, मिनट्स में पूरा होता है. 18 मिनट में सोचिए कि ये सारे बेस पेयर बन जाने हैं. 2000 बेस पेयर को 1 सेकंड में अपना पॉलीमराइजेशन कर लेना है. सो दिस इज हाउ DNA रेप्लिकेशन एक्चुअली प्रोसीड्स, है ना. इस तरह से ये आगे बढ़ता है. अब हम स्टेप्स की बात कर लेते हैं. पहले मैं आपको नोट्स देता हूं, उसके बाद मैं फिगर डिस्कस करता हूं. तो पहले ये नोट्स हम देख लेते हैं जिससे कि एक छोटा सा माइंड सेट रहे आपके पास कि कैसे फंक्शन होगा आगे. ओके, सो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द DNA रेप्लिकेशन. आपने एंजाइम और मशीनरी ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं, बहुत इजी होता है. आइए स्टेप को देख लेते हैं. ये स्टेप मैंने खुद 8-9 स्टेप में लिख दिया है, वैसे ही 4-5 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है. पहला, रेप्लिकेशन बिगिंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन.
है ना। ऐसा नहीं कि डीएनए में कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। डीएनए में एक पर्टिकुलर ORI रीजन होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दिस इज व्हाट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज नोन एज ORI, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर ORI रीजन होता है हर डीएनए में। निक फॉर्मेशन होता है, फिर वो फॉर्क बनाते हैं, ओपन होते हैं, तो ये सारी प्रोसेस होती है। तो जो ORI रीजन है वहां पे हेलिकेज एंजाइम जाएगा और वहां पे प्रेजेंट जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उनके बीच के हाइड्रोजन को कट करेगा, फॉर्क क्रिएट करेगा। अब कट कर देगा तो जैसे धागे को हम खोलते हैं तो पीछे को इकट्ठा होता जाता है, सुपर कॉइलिंग होती है, टेंशन क्रिएट होता है, तो उसको रिलीज करने के लिए फिर वहां पे टोपोआइसोमरेज उसे कट करेगा और लाइगेज एंजाइम उसे फिर से जोड़ देगा। लाइगेज की खास बात है, लाइगेज एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को बहुत अच्छे से जोड़ता है, या आप कह सकते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाने में माहिर होता है। तो जोड़ने का काम लाइगेज यहाँ पे करता है बहुत अच्छे से, ये याद रखेंगे आप, है ना। लाइगेज का बहुत फंक्शन होता है। सो सेकंड स्टेप में क्या होगा, हेलिकेज क्लीव द हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू क्रिएट रेप्लिकेशन फॉर्क। वाई शेप्ड का एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा और वो फिर से आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है तो फिर से जुड़ न जाए, इसलिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स वहां पे आके अटैच हो जाती हैं। तो थर्ड स्टेप देखिए, topoisomerase cut and release the tension or supercoiling of the two strand, whereas ligase join the two strands on the previous location. Okay, and in the very next step, single strand binding protein SSB then binds at the two strand of the DNA in order to avoid rebinding. In order to avoid rebinding. Am I clear? Okay, good. Now in the very fifth step, RNA primase, you can see here, it is what? RNA primase catalyze the loading of RNA primer on both the DNA strand. इस स्टेप को आप देख पा रहे हैं? ओके, अब देखिए यहां पे जो RNA primase लिखा है, actually this is not RNA primase. You must note this. This is what? This is DNA primase. तो यहां एंजाइम कौन होगा? DNA प्राइमेज। ऐसा है क्या? आप लोगों ने क्या थोड़ा सा डिस्कशन किया है? नो। ओके ओके ओके, सो दिस इज व्हाट? DNA प्राइमेज। द एंजाइम इज व्हाट? DNA डिपेंडेंट प्राइमेज, DNA प्राइमेज, बट इट एक्चुअली कैटलाइज एंड इनिशिएट द लोडिंग ऑफ RNA प्राइमर। किसको लोड करेगा? RNA प्राइमर को, DNA प्राइमर को नहीं। यू मस्ट नोट दिस, दैट प्राइमेज एंजाइम इज एक्चुअली नोन एज व्हाट? DNA प्राइमेज। हियर पर्टिकुलरली इन दिस सेक्शन, अलग अलग लोकेशन की हम बात अलग कर सकते हैं, बट हियर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट? DNA प्राइमेज कैटलाइज द लोडिंग ऑफ RNA प्राइमर। यस, यही तो कंफ्यूजन है, यहीं पे तो फंसते हैं लोग। तो ये जो प्राइमेज कर रहे थे, यहाँ पे DNA प्राइमेज होगा और वो RNA प्राइमर को DNA के जो स्ट्रैंड बने होंगे, फॉर्क बनेंगे, उस पर लोड करेंगे। आगे हम स्ट्रक्चर में समझेंगे, पहले स्टेप्स को देख लीजिए। तो क्लियर हो गया? आप लोगों ने लिखा DNA प्राइमेज कैटलाइज द लोडिंग ऑफ RNA प्राइमर ऑन बोथ ऑफ द स्ट्रैंड, और इनकी लोकेशन बिल्कुल फिक्स होती है भाई साहब, है ना। इनका जो प्राइमर होता है ना, प्राइमर बिल्कुल। अच्छा, व्हाट इज प्राइमर? तो प्राइमर इज व्हाट? शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड होगा, अप टू 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर, तो वो प्राइमर होता है। जैसे हम घर में गेट आता है जो लोहे का, हमारा जो मेन गेट होता है, हम क्या करते हैं, उस आयरन पे हम प्राइमर रेड ऑक्साइड का यूज करते हैं, प्राइमर उस पे यूज करते हैं, एंड देन वी यूज द कलर्स। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए प्राइमर, क्योंकि इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड इनिशिएशन करने में बहुत इजी होता है। दे आर एनर्जी एफिशिएंट एंड दे आर शॉर्ट, सो दे कैन इजीली इनिशिएट द प्रोसेस, एंड दैट्स व्हाई RNA प्राइमर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन DNA रेप्लिकेशन। फर्दर जो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज 1 है, वो RNA प्राइमर्स को एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू इजीली बाहर कर सकता है और फिर वहां पे
जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होंगे उनको ऐड कर देगा, बट फाइनल ज्वाइनिंग नहीं कर सकता है क्योंकि वो काम लाइगेज का है ना। एस्टर बॉन्ड्स बनाने में माहिर कौन? लाइगेज। चलिए 6th पॉइंट, DNA dependent DNA polymerase 3 catalyze the polymerization only in 5 prime to 3 prime. You must note this. This is very important. In both of the strands, जो दोनों स्ट्रैंड हैं, दोनों ही स्ट्रैंड पे DNA dependent DNA polymerase single enzyme is DNA dependent DNA polymerase 3, or you can simply say that DNA polymerase 3. Okay, single enzyme work on both of the strand. Single enzyme work on both of the strand, and this enzyme only work in 5 prime to 5 prime 3 prime 5 prime to 3 prime manner, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही फंक्शन करेगा। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है इसका, है ना। इसकी वजह से अभी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स वगैरह बनेंगे, वो हम देखेंगे आगे। ऑन वन स्ट्रैंड टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, डीएनए के जो डबल दो स्ट्रैंड होते हैं, डबल हेलिकल मॉडल होता है, आपने देखा है कि एंटी पैरेलल होता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या एंटी पैरेलल्स होते हैं। एंटी पैरेलल में एक तरफ तो 3 प्राइम से 5 प्राइम की पोलैरिटी होती है, दूसरे पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम की पोलैरिटी होती है। तो डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, उस पे कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस होगी, है ना, और उसको बोलेंगे हम लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि जो दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड होगा, जो क्या बोलते हैं टेम्पलेट का काम करेगा, उसकी पोलैरिटी अपोजिट होगी एज यूजुअल, है ना, और वो होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो उस पर डिसकंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन होता है और उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। कुछ लैग हो रहा है ना। अब समझ में आ रहा? ओके, आगे हम फिगर डिस्कस करेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर होगी। पहले ये स्टेप पढ़ लीजिए एक बार। सो on one strand the template with polarity, this is what this template is, what this is the parent DNA. Okay, so one strand with template with polarity 3 prime to 5 prime, the replication is continuous and is known as leading strand, while on the other the template with polarity 5 prime to 3 prime, it is discontinuous. So fragments are formed on the second one, and these fragments on the lagging strands are known as what? Okazaki fragments. Okazaki साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को समझा, इसको डिस्क्राइब किया और उनके नाम पे हमने रखा ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। Am I clear? Okay. RNA primers are removed by DNA polymerase 1, मैं इसी की बात कर रहा था, and discontinuously synthesized fragments are later joined by DNA ligase. तो फाइनल ज्वाइनिंग कौन करेगा? DNA ligase. Finally, 2 DNA are formed with one of the parental strand and other complementary strand is newly synthesized. तो फाइनली 2 डीएनए बने, जिसमें से एक जो क्या बोलते हैं, जो 2 डीएनए बनेंगे, दोनों में से एक स्ट्रैंड ऐसा होगा जो पेरेंट से उनको मिला होगा और एक स्ट्रैंड ऐसा होगा जो न्यूली सिंथेसाइज होगा, दोनों में, है ना। अब क्योंकि एक पेरेंट से मिला था तो कंजर्व हो गया ना, नेचर तो कंजर्वेटिव हो गया, लेकिन एक नया बन रहा है तो नेचर कंजर्वेटिव हुआ, बट कितना? हाफ, 100% कंजर्व नहीं हुआ, 50%, हाफ ऑफ द नेचर विल बी कंजर्व. सो दिस टाइप ऑफ मॉडल इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, हेंस दे आर सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. हम आई क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आप मैसेज कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको. ओके,
नाउ नेक्स्ट, अब हम डीएनए को पहले समझ लेते हैं कि डीएनए कैसा दिखता है, डीएनए की पोलैरिटी क्या है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था, फिर से एक बार देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम रेप्लिकेशन के स्टेप पे आते हैं। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ए एंड दिस इज द वाटसन क्रिक मॉडल बी। ओके, in molecular structure it is now very clear what is polarity. This is 5 prime and here it is 3 prime. At 5 prime end you can easily observe that the fifth carbon of sugar is attached with the phosphate and it is free. This end is free, it provides PO2, that is phosphate, and here OH hydroxyl is free at the 3 prime. सो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एक साइट प्रोवाइड कर रहा है, जगह प्रोवाइड कर रहा है आके जुड़ने के लिए, है ना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जगह प्रोवाइड करेगा 3 प्राइम पे, ये समझ में आ रहा है ना। तो आपने देखा पीछे कि जो क्या बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 है, उसका पर्टिकुलर एक्शन है कि वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही फंक्शन करेगा, है ना। यू कैन जस्ट सी दिस वन कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मैंने कहा था इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम पे कैटालाइज करेगा। इसका मतलब कि जो पेरेंट स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम हुआ तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड यू कैन सी इट इज व्हाट 3 प्राइम स्ट्रक्चर। तो अगर यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है तो वो इस पे कंटिन्यूअस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्मेशन करेगा एंड हेंस दिस स्ट्रैंड विल बिकम लीडिंग स्ट्रैंड, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 इस 3 प्राइम एंड पे आके क्यों अटैच होता है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल जो है उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इनिशिएशन करने के लिए। अब समझ में आ रहा है ना? तो यही चीज है। और हमने पीछे क्या पढ़ा कि एक ही एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द सिंगल एंजाइम एंड दैट सिंगल एंजाइम एक्चुअली हैव टू वर्क ऑन बोथ ऑफ द स्ट्रैंड्स, है ना। इस स्ट्रैंड पे भी वर्क करना है और उसको इस स्ट्रैंड पे भी वर्क करना है, बट कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट कि यहाँ तो 3 प्राइम उसको फ्री मिल गया है आपके डीएनए पॉलीमरेज 3 को, बट यहाँ पे 3 प्राइम नहीं है, यहाँ पे क्या है 5 प्राइम है, और ये एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है। आगे स्टेप में हम देखेंगे कैसे। तो मेरे ख्याल से पोलैरिटी वाला केस अब आपको समझ में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्राइम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है और एंजाइम एक ही है। मान लीजिए हमारी 2 हाथ है, एक इस साइड में एक इस साइड में, और हम आगे की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड आगे की ओर कोई रस्सी जा रही है उसको पकड़ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड किसी ऐसी रस्सी को पकड़ रहा है जो पीछे की ओर मूव कर रही है, पर बॉडी तो एक ही है, सिंपली मतलब एंजाइम तो एक ही है। तो अगर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो राइट हैंड साइड में रोप है वो आगे की ओर धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, उसके साथ बिल्कुल स्लाइड करता हुआ मूव करता हुआ आगे जा सकता है। लेकिन लेफ्ट हैंड में जो हमने रोप पकड़ रखा है वो पीछे की ओर धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाने के बाद हमारी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, एंड एट दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर हमने पीछे वाले को नहीं छोड़ा तो हम गिर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको छोड़ेंगे फिर आगे कहीं पकड़ेंगे, तो बीच में गैप क्रिएट होगा, है ना। तो कुछ ऐसा ही डीएनए रेप्लिकेशन में होता है। अब समझ में आ रहा है? चलिए आगे के स्टेप्स को देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत कहानी आपके समझ में आ चुकी है, तो अब बस कहानी समझ में आ गई तो डीएनए रेप्लिकेशन खत्म। डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ ज़्यादा है नहीं। Now here you can see this is what parent DNA having 2 strands which are joined with the hydrogen bonds. These are what? Hydrogen bonds. Okay, ये समझ में आ रहा है? अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमने देखा कि यहाँ पे ORI रीजन होता है, जहाँ पे ORI रीजन है वहाँ पे
रेप्लिकेशन फॉर्क बनना स्टार्ट होगा। और रेप्लिकेशन फॉर्क किसकी वजह से बनेगा? प्राइमोसोम की वजह से बनेगा। प्राइमोसोम किस किस से मिलकर बना है? दो एंजाइम है यहाँ पे, एक तो डीएनए हेलिकेज और फिर यहाँ पे हो जाएगा डीएनए प्राइमेज। हम इसी की बात कर रहे थे, मैंने कहा था ना डीएनए प्राइमेज होगा, लेकिन जो प्राइमर लोड होगा वो आरएनए प्राइमर होगा। एंजाइम तो डीएनए प्राइमेज होगा, लेकिन जो प्राइमर लोड होगा वो आरएनए प्राइमर होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रेस्पेक्ट में। हमें क्लियर? तो डीएनए स्ट्रैंड आपने देखा, प्राइमोसोम देखा। अब इसको समझते हैं स्टेप वाइज, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए ये डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, और ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स आपको देख रहे हैं ये हेलिक्स में है और डबल हेलिकल मॉडल है, यानी दो स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कुछ इस तरह से, है ना। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एरिया पे आइडेंटिफाई होगा कि कहाँ पे वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और वहाँ पे टोपो आइसोमरेज एंजाइम, दिस पर्पल बॉल्स इंडिकेट टोपो आइसोमरेज। ओके, टोपो आइसोमरेज एक्चुअली क्या कर रहा है कि कॉइलिंग को अनजिप कर रहा है, कॉइलिंग को अनजिप कर रहा है, कट कर रहा है, और फिर उसको हेलिकेज आके लोकेशन पे जोड़ता है, आगे की ओर स्ट्रैंड को बढ़ाता जाएगा, अनजिप करता चला जाएगा, है ना। तो टोपो आइसोमरेज उसको ओपन करने का काम कर रहा है, जो हेलिक्स है उसको ओपन करने का काम कर रहा है, उसको स्ट्रेट सीधा करने का काम कर रहा है, आप कह सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को नहीं तोड़ रहा है, यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। टोपो आइसोमरेज क्या कर रहा है? बस जो हेलिकल स्ट्रक्चर है जो घुमा हुआ है उसको सीधा कर दे रहा है, ये समझ में आ रहा है। और जब ये बिल्कुल स्ट्रैंड सीधे हो जाते हैं तो ये डीएनए हेलिकेज है। ये कौन है? डीएनए हेलिकेज, द येलो एंजाइम which you see here. This particular enzyme now cleave the hydrogen bonds between the two strands. तो अब वो जो डीएनए सीधे हो चुके हैं, है ना, जब ये डीएनए कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगे, रेल की पटरी की तरह, है ना, रेलवे ट्रैक्स, लाइक रेलवे ट्रैक्स। ओके, सो this is what the coiled structure, and uncoiling or unzipping will डन बाई द टोपो आइसोमरेज। तो जब टोपो आइसोमरेज वर्क कर लेगा तो वो लगभग ऐसे स्ट्रक्चर में होंगे, बिल्कुल सीधे। लेकिन अब इस बॉन्ड को ब्रेक भी तो करना है, वी हैव टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, सो दिस इज डन बाय द डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज नाउ ब्रेक दिस बॉन्ड्स एंड मेक an appearance of Y-shaped structure which is known as replication fork. Okay, am I clear? So this is the replication fork which is formed. अब ये fork बन गए हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो ये फिर से आपस में जुड़ ना जाएं जल्दी से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं these small sweet balls are present here, and these small sweet balls are made up of what? Proteins called single strand DNA binding proteins. These are what? Single strand DNA binding protein, and these binding proteins are now binds here at both of the strand, so that कि वो दोनों फिर से आपस में जुड़ ना जाए, है ना। क्योंकि अगर जुड़ जाएंगे तो फिर हमारा डीएनए का जो नेक्स्ट रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तक की स्टेप क्लियर हो गई, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा, जिसको शॉर्ट स्टोरी पढ़नी हो, मैंने 4 मिनट का भी डीएनए रेप्लिकेशन डाला है, आप 4 मिनट का भी देख सकते हैं, लेकिन 4 मिनट में और इसमें थोड़ा डिफरेंस जरूर होगा, है ना। ओके, तो आपने देख लिया कि डीएनए हेलिकेज ने क्या किया? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ दिया और वाई शेप्ड में कन्वर्ट कर दिया, और वो फिर से आपस में जुड़ न जाए इसलिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स यहाँ पे आके अटैच हो जाती हैं। अब जब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच हो जाती हैं तो यहाँ पे डीएनए प्राइमेज, दिस ग्रीन एंजाइम हियर, इट इज व्हाट? डीएनए प्राइमेज। तो डीएनए प्राइमेज अपनी एक्टिविटी के थ्रू प्राइमर को लोड करता है। नाउ इफ यू कैन इमेजिन, दिस इज द पेरेंट, this is the parent 3' end, okay, and this is the parent 5' end, okay. If you can imagine, this is the parent 3' end and the lower one is parent 5' end. Am I clear?
ओके ओके। तो ये जो प्राइमेज, डीएनए प्राइमेज आप देख रहे हैं, इसने यहाँ इनिशियल पॉइंट में प्राइमर लोड कर दिया था और इस नीचे वाले स्ट्रैंड पे भी अलग अलग लोकेशन पे प्राइमर को लोड करता ही चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? ना यू कैन सी दिस, आप देख रहे हैं डोनट्स, द पिंक डोनट्स। Pink donuts are simply what? These are the DNA dependent DNA polymerase 3. This pink donut like structure are DNA dependent DNA polymerase 3. And as I told you that DNA dependent DNA polymerase 3 is a single enzyme work on both of the strand. It means they are joined in this fashion and they have to move in this particular direction. But if you can just see कि यहाँ पे पोलैरिटी पेरेंट डीएनए की 3 प्राइम है और यहाँ पे 5 प्राइम है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये वो आर्म है जो राइट हैंड पे था और रोप आगे की ओर जा रही है, बिल्कुल स्मूथ है ना। तो स्लाइडिंग क्लैंप्स यहाँ पे बीटा क्लैंप लोडर्स होते हैं और ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 के पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं और क्या बोलते हैं डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको लोड करते रहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को बनाते हैं। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन रिबन बन रही है और ग्रीन रिबन बिल्कुल कंटिन्यूअस बन रही है। दिस इज द न्यू स्ट्रैंड, दिस इज द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड बाय this particular DNA dependent DNA polymerase 3 enzyme and since it is continuously formed। क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पे पेरेंट 3 प्राइम है, ठीक है, 3 प्राइम से 5 प्राइम है और DNA polymerase 3 अपने आप में अपनी एक्टिविटी को कहाँ से स्टार्ट करती है? 5 प्राइम से, है ना। अपनी एक्टिविटी को ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई? तो 5 प्राइम से। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम ये बनता चला जा रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, कंटिन्यूअस बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस बन रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब नीचे इमेजिन करिए, नीचे क्या है? ये पेरेंट का 5 प्राइम एंड है तो पक्का है कि ये यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा और आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 पेरेंट के 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर मूव करेगा, यानी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो यहां से ये स्ट्रैंड आगे की ओर मूव कर रहा है, डीएनए मतलब डीएनए पॉलीमरेज का ये आर्म आगे की ओर मूव कर रहा है और ये पीछे की ओर मूव कर रहा है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने के बाद ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि इसको आगे बढ़ना है तो ब्रेक हो जाएगा और फिर जहां पे ये पॉलीमरेज आपको डीएनए प्राइमेज दिख रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज का डोनट अब ये यहां पे आके अटैच होगा, तो बीच में कुछ गैप क्रिएट हो जाएगा। एग्जैक्टली ये जो गैप क्रिएट होता चला जाएगा ये पूरी लेंथ में ऐसा होता रहता है। यहाँ पे लगातार कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे बार बार इसको कुछ कुछ डिस्टेंस पे आके बार बार लोड होना पड़ेगा। बीटा क्लैंप लोडर बार बार बीटा क्लैंप लोड होते रहेंगे और स्लाइडिंग क्लैंप्स बार बार पीछे जाने के बाद टूटते रहेंगे, है ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं ये। इस वजह से इसमें क्या होता है, लूप बन जाता है, जो लैगिंग स्ट्रैंड है नीचे वाला उसमें लूप बन जाता है और इस वजह से यहाँ पे फ्रेगमेंट्स, टुकड़े बन जाते हैं। बहुत सारे डीएनए बनते हैं लेकिन टुकड़े टुकड़े में बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और ऊपर वाला स्ट्रैंड जहाँ पे लगातार कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और नीचे वाला जहाँ डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये बात समझ में आ रही है ना? ओके गुड। अब इस मॉडल में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पीछे आपको ये समझ में आ चुका था कि कैसे लोड होते हैं। अब आपको यहाँ पे एकदम क्लियर है कि ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है यहाँ पे पेरेंट क्या है, 3 प्राइम है ना। अगर मैं इसे जूम आउट करके दिखाऊं, को जूम इन करके दिखाता हूं, आई जस्ट जूम इन दिस वन। ओके, दिस इज व्हाट the white strand indicates what? the parent DNA। यहाँ पे जो white है वो parent DNA है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये ग्रीन कलर के डीएनए पॉलीमरेज हैं, है ना। अब डीएनए पॉलीमरेज की खास बात आपको पता ही है कि इनको एक ही डायरेक्शन में रन करना है, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही ना। और इनका डायरेक्शन क्या होगा?
ये खुद 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर चलना शुरू करते हैं। ये जो येलो कलर का स्ट्रैंड आप देख पा रहे हैं, ये येलो कलर का स्ट्रैंड आरएनए प्राइमर है। ये क्या है? आरएनए प्राइमर है। और आप नीचे वाले स्ट्रैंड पे देख पा रहे हैं कि आरएनए प्राइमर बीच में यहाँ पे लोड हो गया है। इसी तरह से जब आप प्रोग्रेस देखेंगे तो आरएनए प्राइमर नीचे अलग अलग जगह पे लोड होता चला जाता है। मेरे ख्याल से अब ये आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, कहीं कोई समस्या तो नहीं, इजीली। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है। रेड कलर का स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड है, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है ना? ये समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से? गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है। बट इन द लोअर स्ट्रैंड दिस पर्टिकुलर डीएनए पॉलीमरेज 3 हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन, in this particular direction, okay, but actual synthesis will take place overall in this direction, in from left to right. But for this particular strand, the lower part of the DNA polymerase 3 have to move from right to left, and this actually cause the additional complexity. And due to this particular activity, now you can see कि ऊपर वाला जो डीएनए पॉलीमरेज 3 था वो एंड तक पहुंच गया है ना। अब ये एंड तक पहुंच गया तो ये अगर अटैच होता इसके साथ तो प्रोसेस स्टॉप हो जाती, लेकिन प्रोसेस को स्टॉप नहीं होना है, प्रोसेस को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होना है। Am I क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा ना? सो अगेन यहाँ पे प्राइमर होगा और फिर से बीटा क्लैंप लोडर इस आर्म के साथ ये फिर से यहाँ पे लोड हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 3 और फिर ये आगे की ओर कुछ दूर मूव करेगा, तब तक ये और आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस आप देख रहे हैं आगे बढ़ता है और बीच बीच में गैप क्रिएट होते रहते हैं। फिर तीसरा एंजाइम तीसरी बार डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक फिर से यहाँ पे क्लैंप लोड होगा, फिर ये इसी डायरेक्शन में जाएगा और इस तरह से ये करते करते छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बीच में बनते चले जाते हैं। ऊपर वाले पे कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है तो लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, नीचे वाले पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो ये लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 ने जो करना था वो कर लिया। अब किसकी बारी है? डीएनए पॉलीमरेज 1। यहीं पे डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा और यहाँ पे जो बीच बीच में आरएनए प्राइमर्स हैं उनको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू बाहर कर देगा, है ना, और स्ट्रैंड को कंप्लीट कर देगा। बस फाइनल जो गठजोड़ होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड वो नहीं बना सकता, वो डीएनए लाइगेज का काम है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से पॉलीमरेज 1 काम करेगा और फाइनली जो यहाँ पे फाइनल बॉन्ड होगा वो डीएनए लाइगेज कंप्लीट करेगा। कौन कंप्लीट करेगा? डीएनए लाइगेज कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से एक्चुअल टाइम में, रियल टाइम में आपका रेप्लिकेशन आगे की ओर होता ही रहता है। कहीं कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत है तो आप मैसेज करते रहिए। Very similar experiments involving use of radioactive thymidine to detect the distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on Vco faba, है ना, faba beans पे किया गया था by Taylor and his colleagues in 1958। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर पता किया गया कि ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है कि नहीं, है ना। लेकिन जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूफ करने के लिए, उस पर आपके एनसीईआरटी बुक में नोट्स भी दिया है और उसमें क्वेश्चन भी आते हैं खूब ढेर सारे। नीट में भी खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट में हम सॉल्व भी करेंगे। ओके, द एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड दैट डीएनए इन द क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, है ना, यानी डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से भी रेप्लिकेशन कर सकता है। अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की, जिसकी हम इंतजार कर रहे थे। रेप्लिकेशन आपने पढ़ लिया, अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पढ़ते हैं। बहुत छोटा पार्ट है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टार्ट करें द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इस बात को सेटिस्फाई करेगा और प्रूफ करेगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन
सेमी कंजर्वेटिव होता है. इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली. इट वाज shown first in Escherichia coli and subsequently in higher organisms such as plants and human cells. Am I clear? Okay. तो दो साइंटिस्ट थे. 1958 में इन्होंने ई कोलाई पे काम करना शुरू किया और इसके लिए इन्होंने हैवी आइसोटोप का यूज किया. याद रखेंगे, रेडियो एक्टिव यहां पे आप वर्ड यूज नहीं कर लेंगे. रेडियो एक्टिव नहीं, हैवी आइसोटोप, जो भारी होते हैं वजन में, वो भारी होंगे. रेडियो एक्टिव की बात नहीं हो रही है. तो बहुत ही क्लियर माइंडसेट रखना है आपको. यहां पे हम हैवी आइसोटोप की बात कर रहे हैं, ना कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं. So, Matthew Meselson and Franklin Stahel performing the following experiment in 1958. First point means they have some steps. The first step is they grew E. coli in a medium containing ammonium chloride having nitrogen N15. N15 is the heavy isotope of nitrogen. It is not the radioactive element. Okay, it is the heavy isotope of nitrogen. तो अमोनियम क्लोराइड में ई कोलाई को ग्रो कराया, कुछ जेनरेशन तक कराया, मतलब 8-10 जेनरेशन तक कराया. जब लगातार कराया तो एक ऐसा ई कोलाई की जनरेशन तैयार हो गई जिसमें कि सभी के सभी जो डीएनए थे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स थे, वो आपस में जितने भी थे सब में कैसा हो गया, नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन कैसा हो गया, हैवी हो गया, N15 हो गया, है ना. सो कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन. तो ई कोलाई को कई जनरेशन तक अमोनियम क्लोराइड में ग्रो कराया और वो ऐसा मीडियम था जिसमें नाइट्रोजन हैवी आइसोटोप था, यानी N15 था. द रिजल्ट वाज दैट N15 was incorporated into the newly synthesized DNA. This heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in a cesium chloride density gradient. है ना, CSCl, cesium chloride density gradient मीडियम में जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया और फिर इसको हमने चेक किया कि इसकी ग्रेविटी और इसका जो अट्रैक्शन है किधर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के किस तरफ है. तो जिधर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स था वो डीएनए वहां पे जाके रुक रहा था. इसका मतलब कि N14 वहां पे बिल्कुल भी एब्सेंट है. और कौन प्रेजेंट हो गया है अब, N14 एब्सेंट हो गया, नॉर्मल नाइट्रोजन, एंड हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15 is now present. Okay, please note that N15 is not radioactive isotope. Okay, this is not radioactive and it can be separated from N14 only on the base of densities. डेंसिटी के बेस पे इसको अलग करेंगे, है ना. ये रेडियोएक्टिव नहीं है कि चमकेगा तो अलग से हम देख लेंगे. सेकेंड, then they transfer the cells into the medium with normal nitrogen and ammonium chloride combination. अमोनियम क्लोराइड अब की बार नॉर्मल नाइट्रोजन के साथ होगा, यानी N14 के साथ होगा. तो अब हमारे पास जो कई जनरेशन तक हमने ई कोलाई को ग्रो करा लिया है, तो उसमें N15 आ गया है, उसके डीएनए में N15 है, हैवी आइसोटोप है. जब ऐसा हो गया, अब हमारे पास जो प्योर कल्चर है जिसमें केवल N15 वाले डीएनए वाले क्या है हमारे पास, ई कोलाई है. नेक्स्ट जनरेशन में ग्रोथ कराने के लिए अब उसको मेजल्सन और स्टॉल ने क्या किया कि नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड, नॉर्मल नाइट्रोजन के साथ जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है उस न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराना शुरू कर दिया. ये समझ में आया. एंड टुक सैंपल्स एट वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल्स, है ना, 20-20 मिनट पे. एनसीईआरटी में 20 मिनट अभी आगे पढ़ेंगे हम. एट वेरियस टाइम इंटरवल्स as the cells multiply and extract the DNA that remained as double-stranded helix
The various samples were separated independently on cesium chloride gradients to measure the densities of DNA. To measure the densities of DNA. The DNA that was extracted from the culture, the DNA that was extracted from the culture at this time, now one generation after the transfer of N15 to N14 medium, that is after 20 minutes, please note this, after 20 minutes, E. coli divide in 20 minutes here, okay, had a hybrid or intermediate density. आगे हम ट्यूब स्ट्रक्चर में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. ओके, DNA extracted from the culture after another generation means 20 plus 20 40 minutes. After 40 minutes was composed of equal amount of this hybrid DNA and light DNA. तो इसको लेकर के NCERT में क्वेश्चन दिया है कि 80 मिनट के बाद हाइब्रिड DNA और लाइट DNA का रेशियो क्या हो जाएगा. आगे देखते हैं. You can see this. The very first structure is the DNA with N15 nitrogen. The DNA having nitrogenous base consists of N15 heavy isotope of nitrogen. Okay, so हमारा एक्सपेरिमेंट इसी पर्टिकुलर DNA स्ट्रक्चर से शुरू होगा. तो ये कौन सा DNA हैवी है, कैसे पता चला? जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो यहाँ देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है और ग्रेविटेशनल फोर्स आप देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स increases from left to right and you can see the band which is present here, ये हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के पास है. इसका मतलब कि ये ज्यादा भारी है, हैवी है. इट इज व्हाट, दिस इज हैवी. ये ज्यादा भारी है, हैवी है, इसीलिए ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के पास प्रेजेंट है. 20 मिनट तक ग्रो होने दिया. अब कहाँ ग्रो होने देंगे? तो इसको नॉर्मल कंसंट्रेशन में, ये यहाँ कंडीशन कौन कौन सी होगी? व्हाट आर द कंडीशंस, ग्रोथ कंडीशंस हियर? द ग्रोथ कंडीशन इज दैट नाउ द अमोनियम क्लोराइड हैविंग N14 मीन्स नाइट्रोजन is now normal. Okay, now the ammonium chloride, that is NH4Cl is with normal nitrogen, that is N14. ये समझ में आ रहा है? तो 20 मिनट तक इस मीडियम में ग्रो करने दिया और 20 मिनट के बाद जो रिजल्ट मिलता है, यहाँ पे उसका पिक्चोरियल व्यू आप देख पा रहे हैं. इसमें एक ग्रीन स्ट्रैंड जो न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड है और एक रेड स्ट्रैंड जो कि पेरेंट स्ट्रैंड है. ग्रीन स्ट्रैंड N14 के साथ होगा और रेड स्ट्रैंड तो पेरेंट का है, N15 रहेगा, है ना. लेकिन ये पता कैसे चलेगा? ये तो हमने पिक्चर ड्रॉ कर लिया, रियल में कैसे पता चलेगा? तो रियल में क्या करना होगा कि सीजियम क्लोराइड CsCl, सीजियम क्लोराइड में इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराइए डेंसिटी चेक करने के लिए. जब सीजियम क्लोराइड में इसकी डेंसिटी हमने चेक की, है ना, सेंट्रीफ्यूज करके, तो ये डेंसिटी कहाँ मिलता है? आप देख पा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होता है. तो ये हायर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मिड रेंज ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये लो रेंज ग्रेविटेशनल फोर्स है. नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट कि जो बैंड पहले स्ट्रक्चर में यहां हुआ करता था वो मूव करके इट स्लाइटली मूव्स टुवर्ड द लेफ्ट साइड. इट स्लाइटली मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, यानी जो डीएनए हैवी हुआ करता था अब वो लेस हैवी हो गया. इट विल बी लेस हैवियर देन द प्रीवियस वन, हैवी वन. इसलिए बैंड मूव हो गया, यहाँ पे बीच में आ गया, है ना. फिर 20 मिनट, अगले 20 मिनट में फिर ग्रो होने दिया, यानी आफ्टर 40 मिनट सेकंड जनरेशन. यहाँ भी N क्या होगा? N नॉर्मल होगा. यहाँ जो अमोनियम क्लोराइड होगा वहाँ पे N14 यूज किया जाएगा. ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है. तो 2 डीएनए से एग्जैक्ट 4 यानी 4 डीएनए बनेंगे और इसमें से 2 ऐसे होंगे, बिल्कुल 2 ऐसे होंगे जो N14 डीएनए के साथ प्रेजेंट होंगे, है ना. यहाँ पे N15 लिखा है, दिस इज रॉन्ग.
आप इसको N14 कर लीजिए। N14 डीएनए के साथ होंगे और दो हाइब्रिड होंगे, N14 और N15 दोनों होंगे। आपको कलर से पता चल पा रहा होगा, जो ग्रीन कलर है वो N14 के लिए है और जो रेड कलर है वो N15 के लिए, तो कलर से आप देख लीजिए। अब इसका भी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे सीजियम क्लोराइड में, CsCl। तो सीजियम क्लोराइड में जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन हमने किया तो क्या होगा, देखिए दो तरह के स्ट्रैंड मिलेंगे, दो तरह की डेंसिटी मिलेगी हमको यहाँ पे। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कि लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेगी, है ना। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो दो तरह की डेंसिटीज यहाँ देखने को मिली। पहली डेंसिटी तो वो जो कि यहाँ बीच में प्रेजेंट थी ग्रेविटेशनल फोर्स में, जो ओरिजिनल डीएनए था उससे स्लाइटली शिफ्ट होके बना था। सेकंड डेंसिटी जो मिलता है अमेजिंगली वो और भी ज्यादा लाइट है, यानी शिफ्ट हो गया और भी ज्यादा लेफ्ट साइड में, है ना। तो इट इंडिकेट्स जो एकदम लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, ब्लू कलर से यहाँ बना हुआ आप देख पा रहे हो। मैं इसे जूम कर दूं, ओके ओके, यू कैन सी दिस। तो अब यहाँ पे ये जो बैंड है ये तो हाइब्रिड था, ये ऑलरेडी हमने पता लगा लिया था। इसके बाद एक बैंड बना यहाँ पे जो कि और भी ज्यादा लो ग्रेविटेशनल फोर्स के पास था, है ना। सो इट इंडिकेट्स दैट नाउ डीएनए इज मच मच मोर लाइटर देन द ओरिजिनल वन विच इज एक्चुअली प्रेजेंट हियर, विच इज एक्चुअली प्रेजेंट एट द राइट ऑफ द ट्यूब, राइट साइड ऑफ द ट्यूब, राइट टर्मिनल ऑफ द ट्यूब। यानी ये जो नया डीएनए बन रहा है जो ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं, है ना, तो ये कैसा होगा, बहुत हल्का होगा, तभी तो लो ग्रेविटेशनल फोर्स एरिया में प्रेजेंट है डेंसिटी में। इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट हियर एज नाइट्रोजनस बेस इज with N14 combination, with N14 combination. So now here are two type of DNA present. One is the light DNA having only N14 as the nitrogenous base composition, जबकि हाइब्रिड वाले में N14 और N15 दोनों होंगे क्योंकि एक पहले से पेरेंट में प्रेजेंट था। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल यही कहता है कि एक तो पेरेंट वाला कॉम्बिनेशन होगा और एक नया सिंथेसाइज होता चला जाएगा। मेजल्सन और स्टॉल के इस एक्सपेरिमेंट के बाद सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पे उठने वाले सारे सवाल बंद हो गए और ये पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो क्या बोलते हैं वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था वो बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हो सकता है। लास्ट में चलते चलते एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह के क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन से लेकर के लगभग हर एग्जामिनेशन में आते हैं। क्वेश्चन है, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है क्वेश्चन का, विच मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव अप्लाइज टू ई कोलाई। तो ई कोलाई पे कौन सा मॉडल अप्लाई होगा, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव या सेमी कंजर्वेटिव। तो इसको यहाँ पे मेथड दिया हुआ है और इसके रिजल्ट्स नीचे दिए हुए हैं, आइए समझ लेते हैं। यही डिस्कशन हमने पीछे किया है इसलिए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। पहले मीडियम में यहाँ पे N15 मीडियम में कई जनरेशन तक ग्रो कराया गया होगा, है ना। जब कई जनरेशन तक N15 मीडियम में ग्रो कराया तो जब डीएनए को चेक किया हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सीजियम क्लोराइड, तो रिजल्ट्स क्या मिलते हैं भाई, देखिए ये N14 बैंड के लिए ग्रेविटेशनल एरिया है और ये N15 बैंड के लिए होगा और इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट पोजीशन होगा, ये याद रखेंगे। तो जब N15 में लगातार ग्रो किया गया और इसको सेंट्रीफ्यूज करके स्पिन करके जब इसे चेक किया गया तो जितने भी डीएनए थे बने हुए 100% डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, हैवी बैंड पे, दे आर प्रेजेंट ऑन द हैवी बैंड, मीन्स ऑल ऑफ द डीएनए आर हैवी हैविंग N15 नाइट्रोजन। ओके, देन ये जो डीएनए है इनको N14 मीडियम में रिप्लेस किया गया और वहां पे इसको रिप्लिकेट ट्रांसफर किया गया जहां पे ये रेप्लिकेट करते हैं। फिर 20 मिनट के बाद
हमको पता है 20 मिनट में इनकी जनरेशन पूरी हो जाती है, तो 20 मिनट के बाद फिर इसको स्पिन करते हैं हम सीजियम क्लोराइड में। और अब की बार जो डेंसिटी मिली वहाँ पे हैवी बिल्कुल भी नहीं था और लाइटर भी नहीं मिला। ऐसा नहीं कि N14 हमने यूज़ किया तो लाइट बैंड पे तुरंत हमें DNA देखने को मिल गया, नहीं नहीं, यहाँ पे लाइट बैंड और हैवी बैंड के बीच में DNA मिल रहा है। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दिस वन, है ना। तो ये पता चल गया, एटलिस्ट ये रिजल्ट हमें पता चल गया कि ना तो ये एकदम एग्जैक्टली N14 हो गए और ना ये एग्जैक्टली N15 हुए, यानी इन दोनों में N15 और N14 का कॉम्बिनेशन हो गया DNA में। N15 और N14 दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, इसलिए ये बीच में आके प्रेजेंट हो गया। ये समझ में आ गया, है ना। फर्दर इसको फिर से रेप्लिकेट होने दिया गया और मीडियम वही N14 के साथ रहेगा। 20 मिनट, अगले 20 मिनट के बाद फिर हमने इसको सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूज किया, स्पिन किया और पता करने की कोशिश की हमने। अब की बार रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था। एक तो आपको वो स्ट्रैंड मिल रहा था जो इंटरमीडिएट पोजीशन पे था और एक नया स्ट्रैंड मिल रहा था जो N14 बैंड पे शिफ्ट हो चुका था, बट N15 पे कोई भी रिजल्ट इंडिकेट नहीं हो रहा था, शो नहीं हो रहा था। ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि हम कहाँ ग्रो करा रहे हैं, N14। कौन सा मीडियम है यहाँ पे, N14। यानी जो नया DNA बन रहा है उसमें कैसा नाइट्रोजनस बेस आ रहा है, ऐसा नाइट्रोजनस बेस जिसमें नाइट्रोजन N14 है, लाइट नाइट्रोजन है। ओके, तो बैंड जो भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता जा रहा है वो कैसा बनता जा रहा है, लाइट DNA में कन्वर्ट होता जा रहा है। और इस कारण से जो बनने वाला क्या बोलते हैं DNA था वो लाइटर DNA के फॉर्म में भी अपीयर होना शुरू हो चुका है। ये समझ में आ रहा है। इसके अलावा एक हैवियर पार्ट तो पहले से था ही, N15, वो तो गायब होगा नहीं भाई। अगर वो डिस्पर्सिव होता तो गायब होता, कंजर्वेटिव होता तो ये लगातार N15 पे दिखता। सेमी कंजर्वेटिव है इसीलिए मिडिल पोर्शन पे ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा और इसके बाद भी अगर इसे हम ग्रो कराते हैं तो हमें दो डेंसिटीज देखने को मिलेंगी, एक इंटरमीडिएट डेंसिटी और एक लाइट डेंसिटी, है ना। और नीचे कैसे DNA स्ट्रैंड्स अलग होते जा रहे हैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। Am I क्लियर। तो ये जो बीच में पर्पल कलर के बने हुए स्ट्रक्चर है ये सभी N14 है और एक सबसे टॉप पे और एक सबसे नीचे, ये दो हो जाएंगे आपके हाइब्रिड। तो आपका आंसर क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट का आंसर क्या होगा, आंसर जरूर टाइप कर दीजिए। कंक्लूजन में आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, DNA रेप्लिकेशन इन ई कोलाई इज सेमी कंजर्वेटिव। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, DNA रेप्लिकेशन एंड प्रूफ फॉर द DNA रेप्लिकेशन। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए।